Hello everyone, good morning. Online guys, can you hear me? Yes, sir. You are audible. Okay, thank you Yes, so much. sir. Yeah, so we will start the session in another 5 minutes. Meanwhile, can I have a small introduction about you guys? If you are working, in what domain you are working, अगर काम कर रहे हो तो कहाँ पे काम कर रहे हो और कितने साल से काम कर रहे हो? If you are a fresher, what is your background? Like you have done engineering or arts or whatever it is, and what is your pass out year? Okay. Can we start with online, guys? Yes, sir. Yeah. Maybe Abhishek. Sir, good evening, everyone. Yeah, Abhishek. Completed my graduation in BSc IT. Okay. Passing year is 2015. Then I Okay. did competitive preparation for 4 to 5 years. Okay. And during COVID, I started working at Eastern Infotech, known as Delhi Hunt. I Mm-hmm. almost worked for there 2.5 years. And Mm-hmm. now I left the job to pursue in career in data analyst. I Okay. want to switch. So Yeah, no problem. Thank you. Pritish. Pritish, can you hear us? We'll come back to him. Ashutosh. Hello, good morning, sir. Yeah, good morning. Sir, my name is Asutosh Panda. Mm-hmm. I currently completed my BTech from Odisha University of Technology and Research in the branch of Computer Science and Engineering. Mm-hmm. Now I have decided to pursue the career in the data analytics field. Okay. Okay, great. Thank Yes. you. Uh, Deepika. Good morning, sir. Morning. Yes, sir. Actually, I have done BTech in electronics communication, and it's completed in 2013. And I was a working professional from 2015 at IT Research in Bhubaneswar, Khandagiri. Actually, my domain is back office, and I want to change it to data analyst. That's why I joined this class. Okay, great. Thank you. Who is this iPhone? Thank you, sir. Hello, sir. Yeah. Good morning. I am Varsha Vera from Odisha, Bhubaneswar, and I have completed my graduation in BCom, and I Mm-hmm. am a fresher. Okay, great. Thank you. Karishma. Hello. Good morning. Yeah. Sir, I have completed my BCom and I am a fresher. Okay, great. Pooja. Hello. Yeah. Good morning, sir. This side Pooja Bihara. I am from Bhubaneswar. I have completed my BTech in computer science and I have Mm-hmm. 7 years of experience in In, insurance sector. okay. In insurance sector, what exactly you were doing? Sir, I was doing the operational work and Well, preparing reports and doing the analysis, but completely on Excel based, not on Power BI or any other okay. tool. So by using Excel, what exactly? Like you were using pivot tables, pivot charts. Pivot table Mm-hmm. basically and VLOOKUP. Okay. These two were the main I was doing. By any chance in Excel there is something called Power Pivot. Have you used that one? No, sir. Power Pivot I haven't used. Power Okay. Table I have used. Power Chart also I have used, but not Power. Okay, no problem. Great. Thank you. But if you know pivot tables, no, that will be much easier for you for understanding Power BI also. I will let you know. Okay. Thank Oh, you. okay. Oh, Yeah. And Prince. Yes, sir. Sir, I am from UP nearby Kanpur, and I have completed my graduation in BA
in 2021, and after that I have done some freelancing type things, and from Mm. last 2 years I am doing the job in the like a health insurance field related to where I am doing the claim processing Okay, in the okay, back office type things. right, right. Okay, thank you. Rudra? Yes, sir. Good morning. My name is Yeah. Rudrananda Pitni. I'm from Khordha, Odisha. I Okay. completed my MBA graduation from Sushti Academy Management. I have Mhm. 1.7 years of experience into HR recruitment. Okay, great. Thank you. Aces, who is this Aces? I don't know your name. It is written Aces. ASUS. Okay, Pritish, can you hear us now? Can you try to talk? Okay, no problem. Can we start from offline, guys, from you? Hello everyone, myself Vishnu Vishnu Parasya. I complete my master degree in MBA, post graduation television production. After that, well, Okay, last 10 years I'm working at a video journalist in media sector. okay. And Right, thank you. from Odisha, currently I am pursuing NCR Nagaland Institute of Technology, Bhubaneswar. Yes, I am interested. Okay, right. Myself, I have completed my income graduation. Then I have pursued CA. Then it's not working for me. Then I like to join the company. Okay, right. Thank you. About you? I'm working. I have been in household for last. What was your graduation? I completed my BTech in 2012 in Okay, civil engineering. okay, right. You? Hi, good morning, Subhajit Lai, and I have just completed my MBA in 2008. Then I joined in pharma industry. So right now I'm working as a regional sales manager in Google Limited, and last 16 years I have been in this pharma industry. Okay, right. But you? Myself, Subhajit Sao, I am completed my MCA in Nalanda Institute of Technology in 2025. I am professor. Okay, what This is? is good also. I have completed my doctorate career later in from Prathamic Medical Profession. My experience are 3 years of experience automobile sector. Now I'm in In automobile sector, what exactly we're doing? Suzuki. ମାନେ ମାନେ ତମର କାମ କଣ ଥିଲା? What exactly? Quality. Okay. Okay. So, okay, right. About you? Completed my income graduation in Finance Autonomous College, and I decided to pursue data analyst in Thailand. Okay, right. About you? Good morning, everyone. My name is Badal So, and recently I completed my graduation in Discom from Finance Autonomous College, and now I decided to pursue data analytics as a career opportunity. And Okay, right. Okay, great. Thank you so much, guys. Let me introduce myself. Okay, my name is Sujit Malik. I'm basically from Odisha, but born and brought up in Hyderabad. And after my father got retired, we are back to Odisha here. So my native is actually Cuttack here. And from last 2 years, I'm in Odisha. Okay, so I can talk in 4 different languages. I can talk in English, Hindi, Odia, and Telugu. Okay, so whatever you are comfortable, I'm okay with that one. While classes, mostly we will talk in English, sometimes Odia and Hindi. I think some of you are in UP from somebody. So we will mostly avoid Odia and we will try to cover everything in English and Hindi. Yes, Okay. sir. That would be great because I don't know Yeah, any understood. language, Hindi and Yeah. English. Okay, no problem. We will cover everything in Hindi and English only. Okay.
And I see most of you are freshers and some of you are coming from a different domain to data analytics, switching from a different domain to data analytics. To give you a background about me, I was also not into IT from starting. Okay, my graduation was also nothing related to IT. I did my mechanical engineering, 2011 passed out. Okay, and after that I worked in sales and marketing for 3 years into B2B sales in Chennai, where we were selling cutting oils to automobile sector, automobile companies and all. There I had little bit of experience with Excel. Okay, we were using Excel for kind of data analysis. I had lot of dealers. I had every dealer were having 100 to 200 customers and all. So to understand which customer is once the dealer acquires the customer, right? How he is performing, whether they are selling to the customer or not. I had to analyze because when we have 200, 300 मतलब ज़्यादा customers जब होते हैं तो Excel sheet को देखने से समझना मुश्किल हो रहा था. So I started doing little bit of analysis in Excel. Okay, very normal, basic things and all. So after doing for 3 years and all, I felt like maybe I can do more here. Okay, why can't we use some better tool, maybe like Power BI or Tableau or something, which is used in IT most of the time, because everybody knows IT grows very fast with respect to salary, with respect to anything. Opportunity wise also, you will get lot of opportunities in IT. So my target was let's move to IT and see what happens and all. तो तब मैं मतलब I had lot of things in mind. Okay, people were talking about data scientist at the time. Why don't we go for data scientist? में बहुत packages है, अच्छा packages है. Let me open a notepad and we will, or Excel. ठीक है, बहुत सारे मतलब वेज थे, लाइक पीपल आर टॉकिंग अबाउट डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस में बहुत स्कोप है, बहुत पैकेजेस है, you can earn in lakhs and lakhs in data science and all. Some people were talking about data analysis, some people were talking about data engineering. मतलब this was clear that I need to go into data. Okay, क्योंकि डेटा से ही सब कुछ होगा अभी, दैट आई वाज वेरी क्लियर. बट डेटा में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं. Okay, there is something called data engineering, there is something called data analysis, there is something called data science, there is something called business analyst. Okay, ऐसे बहुत सारे चीजें थे which is related to data. Which one I should pick? What is prompt engineering? It will come in kind of like you are using ChatGPT or anything. Yes. Okay, so when we are typing something to get the result, that is prompt. So whatever we give, it will not give us the correct results. We need to give certain keywords, proper keywords. So that is called prompt engineering on a high level. Okay, right. So when I have these many things in mind, so then I started to understand which one requires what kind of skills. Okay, मतलब मेरा स्किल के हिसाब से कौन सा मुझे इजी रहेगा. So when I thought about data science, okay, when I was thinking about data science, I got to know Python is something very important, or any programming language like R programming or Python and all. These are something must and should we know. Without programming language, we cannot do data science. Okay, programming language means lot of code is involved. Lot of code is involved. And I know for a fact, when I was in engineering, to pass C programming, I have written one program in this hand, one program in this hand to pass my exam. So I know that I cannot do coding. Impossible for me at that point of time. So this was gone out of my scope. Okay. Then I thought about data engineering. Data engineering must and should you know advanced level of SQL. Okay, SQL माने कौन है? SQL means what? Structured query language. There also you need to write lot of queries. Okay, starting of the career, if I have to write, here you will have basic things, medium skills and advanced things. 3 different levels will be there.
So data engineering is nothing but database management. जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है, we need to store at some place. We cannot store it in Excel. Excel में हम ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे. Excel has limitation. 60,000 rows or something, it will store up to there. उसके बाद it will create problem. It will hang. Okay. So we need to maintain the database. तो database के लिए we need to know structured query language. और उसके बाद भी बहुत सारे concepts हैं. हाँ. So data cleaning के लिए you need PySpark or Python kind of things. Okay, data जो generate होता है that will not be in cleaned format. उसमें बहुत सारे issues होते हैं. For example, data जब entry होता है, for example, India. Okay, India का for example sales 100 हुआ है, some 2020. Similarly, 2021 में, here they are not writing the entire name, just IND they are mentioning. 200. Then 2022, somewhat said like this capitals. Okay. So जब इसको हम visualize करेंगे, when you visualize this one, no, it will come in 3 different ways. Okay, it will come like this, but actually देखा जाए तो ये पूरा एक ही country का data है, right? Sir. Yeah. Actually देखा जाए तो all this data is related to one country only. It should show like 200 plus 100 plus 150. 450 it should show. Just one column and it should show 450. Why it is showing in 3 different ways? Because data is not in proper format. Okay, if the data is in proper format, we will not get like that. If I do it in 1 second. If I take India and this, it will show it in a single row. Okay. Okay, it will show like this in a single row because it is a single country. So to get into this one, we may have to do some kind of cleaning. Okay. So again, we need SQL or Python or some other cleaning tools or programming tools are required. So this also needs little bit of experience. Directly, it is little difficult. Then comes data analyst. So data analyst क्या करता है? Like right now, what I did, I created a chart. Right, I created a chart. So this is what data analyst will do. This cleaning part will be done by somebody else. Okay, data cleaning, data engineer करके, data preparation का काम data engineer करके, then he will hand over the data to data analyst. मुझे क्या करना है? Already मेरे पास cleaned data है. उस cleaned data को I need to show it in the proper way. Okay, यहाँ पे ज्यादा मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोड लिख के जो भी क्लीनिंग करना था, जो भी करना था, already somebody has already done for me. There is another team who has already created for me. Now I just need to consume that data and I need to put it in a proper format which is easy to understand for the end users. Okay, so इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए what skills you need? You need Excel. You need some visualization tool. Okay, it can be Power BI, it can be Tableau. Okay, there are so many BI tools are there. Why I am talking about Power BI and Tableau? Because these are the trending tools. Why I will tell you. And SQL is required for sure, but not in this level. Okay. यहाँ पे जो SQL चाहिए, we need it in very, very advanced level. Here we need it SQL. Why we need SQL is, हम database से connect कर रहे हैं हर बार. So when you are connecting to database, you need to know the basics of SQL. Okay, select star जो I will show you later on. थोड़ा बहुत SQL चाहिए क्योंकि you want to communicate with the database. Database के साथ अगर communicate करना है,
देन यू नीड टू नो द लैंग्वेज, राइट। आप किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे, उसको जो पता है आपको पता होना चाहिए, राइट। सो सीक्वल डेटाबेस के साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना है, यू नीड टू नो द बेसिक ऑफ सीक्वल एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ पाइथन। ओके, जैसे numpy हो गया, pandas हो गया, these two are the main libraries। ओके, ये दो लाइब्रेरी लेके ही हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारे हैं प्रोग्रामिंग में, पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरी है, बट दैट विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन डेटा, दैट विल बी रिक्वायर्ड इन डेटा साइंस। मैटप्लॉटलिब वो विजुअलाइजेशन में आ जाएगा when you want to show it in the form of graph and all, like matplotlib or cburn, so many libraries are there। ओके, बिजनेस एनालिस्ट के लिए क्या चाहिए? बिजनेस एनालिस्ट इज एक्चुअली फॉर एक्सपीरियंस पीपल, थोड़ा एक्सपीरियंस पीपल के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ, यहाँ पे भी क्या स्किल चाहिए? यू नीड मोर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, क्यों चाहिए? लेट मी हाई लेवल, लेट मी शो यू। ओके, वेरी हाई लेवल आई विल शो यू। डेटा हर जगह जनरेट होता है, राइट। For example, if you take an example of some ICICI bank or something, okay, so they have multiple branches, right? In Hyderabad they have some branch, in Bhubaneswar they have some branch, in Pune they have some branch, okay। Every day there will be data generated, right? हर रोज क्या होगा? Customers आएंगे, they will open an FD account, they will do some transaction, they will invest in mutual funds, they will take a housing loan, they will take vehicle loan, कुछ ना कुछ transaction every day will happen, right? So इस ब्रांच का डेटा इस डेटाबेस में स्टोर होगा। डेटाबेस मतलब क्या है? जहां पे डेटा स्टोर होता है। ओके, डेटाबेस इज नथिंग बट ए प्लेस लाइक ए, फॉर एग्जांपल व्हाट वी कॉल, इफ यू आर ऑर्डरिंग समथिंग इन अमेजॉन, ओके, आपका जो ऑर्डर है फॉर एग्जांपल बैंगलोर से आना है, डायरेक्टली फ्रॉम शॉप टू आपके घर पे नहीं आएगा। तो जितने सारे बैंगलोर से ऑर्डर आ रहे हैं सब लेके एक वेयर हाउस होगा भुवनेश्वर में, सब कुछ आके एक वेयर हाउस में पहले दे विल स्टोर इट, फ्रॉम देयर दे विल डिलीवर टू ईच एंड एवरी हाउस। तो पहले एक जगह पे लाना है सब कुछ, राइट। So similarly, all the data which is generated from different locations, okay, all the data which is generated from different location, first they will put everything in a single place। मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रूथ हो गया। मतलब यहाँ पे जो डेटा, यहाँ पे जो डेटा, यहाँ पे जो डेटा था, सब कुछ लेके आके एक जगह पे स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोर करने के बाद देन they will again put it in another database and data warehouse, both are same। database means single entity, data warehouse means सब मिला के एक जगह पे जो रखते हैं उसको data warehouse बोलते हैं, ठीक है, both are same। यहाँ पे क्या करते हैं? थोड़ा बहुत क्लीनिंग करते हैं, जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पे, जो जैसे मैंने दिखाया था, okay, like cleaning, no? So this is a very simple cleaning, but when you work in very bigger organization, lot of cleaning will be required। Yes, sir। ओके, बहुत सारा क्लीनिंग चाहिए होता है। सो वो क्लीनिंग करके यहाँ पे प्योर क्लीन्ड डेटा रखते हैं, ओके। यहाँ से डेटा जनरेट हुआ है, मतलब कस्टमर से जनरेट हुआ है, ये सब डेटा लाके एक जगह पे स्टोर कर देंगे। यहाँ से फिर से थोड़ा क्लीनिंग सब करके यहाँ पे क्लीन्ड डेटा रखेंगे। नाउ यहाँ पे क्या है? क्लीन्ड डेटा है। इस क्लीन्ड डेटा को लेके, इस क्लीन्ड डेटा को डेटा एनालिस्ट को देते हैं, ओके। दिस क्लीन्ड डेटा विल बी गिवन टू डेटा एनालिस्ट। तो ये क्लीन्ड डेटा को लेके डेटा एनालिस्ट डेटा एनालाइज करके डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स बना के वो क्या करता है? ही विल शेयर इट विद द यूजर्स, मतलब जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक जो काम है, this will be done by a team called data engineering, ओके। ये जो यहाँ से डेटा को उठाना, यहाँ पे डालना, फिर यहाँ से यहाँ पे क्लीन करना, इसके बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ओके। इसके बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ऑन ए हाई लेवल में बता रहा हूँ कि
डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा लेके एक जगह पे स्टोर करना और वहां से डेटा क्लीन करके और एक जगह पे स्टोर करना विद द क्लीन्ड डेटा। ये जो काम करते हैं इसको डेटा इंजीनियर बोलते हैं। टीम को क्या बोलते हैं? डेटा इंजीनियरिंग टीम बोलते हैं। वहां से डेटा को लेके जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उसको डेटा एनालिस्ट बोलते हैं। डेटा एनालिस्ट क्या करता है? क्लीन डेटा लेके रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बना के एंड यूजर के साथ शेयर करता है। ठीक है। और एक टीम है जैसे मैंने बोला था डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट के लिए भी क्लीन डेटा चाहिए, वो भी यहां से ही डेटा उठाता है। ओके, एंड व्हाट ही विल डू, he will do his own analysis. What is the difference between data science and data scientist and data analyst? डेटा एनालिस्ट क्या करता है? जो डेटा है उसी डेटा को इन ए प्रॉपर वे ही विल शो। कुछ नया चीज नहीं बना, नया बनाता है बट नथिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स ही विल डू। ही विल डू जो भी डेटा है उसी को एनालाइज करके। फॉर एग्जांपल ईयरली डेटा है, हम क्या दिखा सकते हैं कि ईयर ओवर ईयर मेरा ग्रोथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। if I am growing or not, if I am growing by what percent I am growing, okay, negatively growing or positively growing। इस साल दिसंबर में मेरा सेल इतना हुआ था, लास्ट ईयर दिसंबर में मेरा सेल कितना हुआ था, दोनों को कंपेयर करना। क्योंकि दिसंबर में जनरली ईयर एंड सेल्स होता है, ज्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, राइट। सो जनरली दिसंबर सेल्स विल बी हायर। सो आई कैनॉट कंपेयर दिसंबर विथ नवंबर, क्योंकि नवंबर से दिसंबर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। So I need to compare December with last year December, क्योंकि last year December में भी same situation था। So those kind of things we will do it in data analysis। Data science क्या करता है? जो available data है, for example यहाँ पे लास्ट 5 साल का इंफॉर्मेशन है, इस 5 साल का इंफॉर्मेशन लेके नेक्स्ट 3 years में क्या होने वाला है, okay, he will predict the future। yes, predict the future। future में क्या होगा, that is what he is going to predict। okay, that is called data science। यहाँ पे we don't do any kind of prediction। okay, whatever is there, अगर हमारे पास एक डेटा है जहां पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, आई कैनॉट सी एंड टेल कि इसमें से कौन सा कैटेगरी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कैटेगरी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आई कैनॉट से अनलेस अंटिल आई डू सम डेटा एनालिसिस। आई विल शो यू एन एग्जांपल। सो जो है उसी को आई एम शोइंग इट इन ए बेटर वे टू इजी टू अंडरस्टैंड, विद इन सेकेंड्स आई कैन अंडरस्टैंड। So that is data analysis। Data science is what? With the same cleaned data to predict the future, next 2 years में क्या होने वाला है। Because for example manufacturing companies जो है उनको अगर prediction नहीं मिलता है then how much they will manufacture। For example car company हो गया या फिर medical device हो गया। So they need to predict। I am working in a company where they make pacemakers। Okay, मतलब मेरा क्लाइंट जो है वो पेसमेकर्स में, पेसमेकर्स मतलब क्या, हार्ट में दे विल पुट इट टू मॉड्यूल द, हाँ मतलब हार्ट रेट जिसका जरूरत से ज्यादा होता है उसको कम करने के लिए यूज होता है, जिसका कम होता है उसको लेवल पे आने के लिए कंट्रोल करता है बेसिकली, राइट। सो दे कैनॉट वेट टिल द कस्टमर ऑर्डर्स। कस्टमर को जब चाहिए होता है दैट शुड बी रेडी। तो दे नीड टू प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट 2 years में मुझे कितना मैन्युफैक्चर करना है। तो वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा जो उनके पास है। डेटा साइंटिस्ट उनको प्रिडिक्शन करके देगा कि उनके पास भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो दे विल टेल दैट दिस डिवाइस आई नीड दिस मेनी नंबर्स, दिस डिवाइस आई नीड दिस मेनी नंबर्स। कौन से लोकेशन में कितना चाहिए, इंडिया में कितना चाहिए, यूएस में कितना चाहिए, फ्रांस में कितना चाहिए, ऑल दिस प्रिडिक्शन दे विल डू एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। The company which the client with whom I am working, no, as per their data, they are touching 4 patients per second। every second they are touching 4 patients। मतलब उतना critical है उनके लिए। तो बिना data analysis और data science का they cannot do anything। Basically, changing the data, after changing the data, data divided into 2। डेटा विल बी, हाँ डेटा एक ही जगह पे होगा, सेम डेटा होगा, उसको मल्टीपल पीपल विल यूज इट। Okay, data analyst can use it, data scientist can use it। He will use it for different purpose, he will use it for different purpose। ठीक है? Divided into 2 parts। Divided मतलब क्या? After cleaning data analysis, someone analysis the data, then same part also। Right। Same data can be used by 2 different people, right? 2 different groups। हाँ, 2 different groups। मतलब 2 different नहीं, जिसी को भी डेटा यूज करना है वो यहीं से ही यूज करेगा, बट मेजरली दे विल बी डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। ओके,
Then comes something called business analyst. Okay, business analyst क्या करता है? For example, I am working for TCS. Okay, TCS मुझे पे कर रहा है. For example, मेरा client for example Castrol है. Castrol is also one company, right? Yes, sir. He is by Automobile. yeah, oil based company basically. Okay, तो इसको क्या चाहिए? रिपोर्ट से डेटा एनालिस्ट चाहिए. इसके पास बहुत सारा डेटा है, इसको डेटा एनालिसिस करना है. तो ये क्या बोलेगा टीसीएस को कि मुझे 2-3 डेटा एनालिस्ट चाहिए. ओके, ही विल से टीसीएस इज ए सर्विस बेस्ड कंपनी. ओके, इनके पास एम्प्लॉयज है, रिसोर्सेस है. सो कैस्ट्रॉल जाके टीसीएस से बोलेगा मुझे 3 डेटा एनालिस्ट चाहिए मेरा प्रोजेक्ट के लिए. सो टीसीएस विल प्रोवाइड 3 डेटा एनालिस्ट. ओके, बट टीसीएस के जो एम्प्लॉयज होंगे इनको ऑयल के बारे में सब कुछ पता नहीं है. दे आर नॉट ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स और दे आर नॉट रिलेटेड एनीथिंग टू ऑटोमोबाइल्स और दिस थिंग. दे डोंट हैव द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. उनको ज्यादा पता नहीं है, मगर डेटा एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आता है. दे नो हाउ टू क्रिएट विजुअल्स, एनालाइज करना अच्छे से आता है, बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एवरीबडी विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट? सो व्हाट विल हैपन इन बिटवीन, ये क्लाइंट जो है, मतलब जो फॉर एग्जांपल कैस्ट्रॉल से एक मैनेजर है जो कि रिक्वायरमेंट देगा, उसको क्या क्या देखना है, क्या क्या एनालाइज करना है, वो आके जो टीसीएस का एम्प्लॉय है उसको अगर बताएगा, इसको सब कुछ समझ में नहीं आएगा. एवरीथिंग ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इफ इट इज एट ए वेरी हाई लेवल. सो इन बिटवीन देयर विल बी ए बिजनेस एनालिस्ट. ओके, जिसको इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ पता है. ही इज द सब्जेक्ट एसएमई. एसएमई मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. इसको सब कुछ पता है इस कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, एवरीथिंग ही नोस हाउ इट वर्क्स. सो व्हाट विल हैपन, दिस गाय विल टेल द रिक्वायरमेंट टू दिस गाय. बिजनेस एनालिस्ट को अपना रिक्वायरमेंट समझाएगा. बिजनेस एनालिस्ट ये समझ के देन बिजनेस एनालिस्ट का स्किल भी क्या होना चाहिए? ही ऑल्सो और शी ऑल्सो नीड्स टू नो एक्सेल, शी ऑल्सो नीड्स टू नो पावर बीआई, शी ऑल्सो नीड्स टू नो SQL. ओके, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड अगेन कम्युनिकेशन, क्योंकि इनका ज्यादा काम कम्युनिकेशन से ही होता है. ये सारे चीज क्यों चाहिए? क्योंकि दिस गाय विल टेल एनीथिंग. ये कुछ भी बोलेगा, वो पॉसिबल है कि नहीं इसको पता होना चाहिए. बिजनेस एनालिस्ट को पता होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो सही में पॉसिबल है कि नहीं. So how he will or she will get to know when she or he has some skills in this part also. Technical skills अगर थोड़ा बहुत होंगे, then only he or she will communicate to him saying that no, whatever you are saying is not possible. Maybe I can do this in a different way. आपको जो चाहिए, आपको आप बोल रहे हो कि मुझे स्कैटर प्लॉट में चाहिए. Then this business analyst, maybe that is not possible in scatter plot. I will show it in a pie chart. I will show the same numbers in a different chart. So थोड़ा technical knowledge भी होना चाहिए to communicate with this guy. ओके, सो पूरा रिक्वायरमेंट समझने के बाद देन व्हाट विल हैपन, दिस गाय विल टेल टू द डेटा एनालिस्ट. जो भी डेटा एनालिस्ट हायर किया गया है उसको आके समझाएगा कि ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, डेटा यहाँ पे है, ये सब करना है, ऐसा सब एनालिसिस करना है. ऑल दोस थिंग्स दिस गाय विल कम एंड टेल टू द डेटा एनालिस्ट in a way which he understands. Business analyst is only to this. Business analyst is a simple bridge between the client and the data analyst. Okay, इसको कुछ डाउट्स है, he will directly go and ask business analyst. Then business analyst will go and check with the client. Okay, in every project business analyst is not mandatory. Okay, तो हर एक प्रोजेक्ट में business analyst mandatory नहीं है. अगर if it is something sales related data, normal data and all, this guy can directly communicate to this guy. Okay, every time it is not required कि business analyst compulsory चाहिए ही चाहिए. But आप कोई भी data analyst project देखोगे, data engineer and data analyst is mandatory. Without data engineer, without data analyst, कुछ नहीं हो पाएगा. Data prepare करने के लिए we need the data engineer. उस प्रिपेयर डेटा को लेके डेटा मतलब विजुअलाइजेशन करने के लिए, मतलब रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा एनालिस्ट चाहिए. दिस इज मैंडेटरी.
हर एक टीम में ये दोनों कंपलसरी रहता है। अगर एक प्रॉपर अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो देन डेफिनेटली दीज टू रोल्स आर कंपलसरी। ठीक है, नाउ ओवरऑल डेटा के बारे में आइडिया है, मतलब कौन से रोल्स होते हैं, कौन सा रोल क्या करते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन? No, sir. Sir, but I have one question. Like I have also heard about the big data type things. Like when it come in the role, उसका मतलब role क्या होता है? Big data is not a role. Big data is a kind of database again. Okay. हाँ, बिग डेटा जो है वो भी एक डेटाबेस है जहां पे डेटा स्टोर होता है। गुड मॉर्निंग सर। या सर मैंने पहले 20 मिनट का क्लास अटेंड नहीं कर पाया, जरा फिर से बताएंगे। डाटा समझ एनालिस्ट में नहीं का आया। सर पहले आप जो 20 मिनट में जो पढ़ाए थे मैंने अटेंड नहीं कर पाया, उसके बाद मैंने ये वाला वीडियो इस यहाँ से अटेंड किया है। पहले क्या पढ़ा था जरा मैं क्लास अटेंड नहीं किया है। अच्छा, लेट से ज्वाइन किया आपने? जी 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 सर, जी सर। कहाँ से ज्वाइन किया? कनेक्शन मतलब जब ज्वाइन किए थे क्या बात कर रहे थे? ऐसे ये सीट नंबर 4 से जो आप बोलते हैं, और डाटा क्लियर डाटा को और डाटा एनालिस्ट को भेजा जाता है और डाटा साइंटिस्ट को भेजा, उसकी प्रीवियस में वही मैंने सेम चीज ही मैंने पहले भी बोला था। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है, डेटा इंजीनियरिंग का काम क्या है, डेटा एनालिस्ट का काम क्या है, डेटा साइंस का क्या काम क्या है, बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या है, ये चारों आपको क्लियर है? जी जी हाँ, दैट इज व्हाट आई डिस्कस्ड। अभी तक मैंने वही बात किया कि डेटा इंजीनियरिंग क्या करता है, डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है। या बहुत कुछ होता है। देयर विल बी लाइक मतलब सिंपल सिंपल होते हैं, जैसे कुछ नाम अपर केस है, कुछ लोअर केस में, दे विल मेक इट इनटू अ प्रॉपर केस। कुछ हायरार्किकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि बिजनेस का हायरार्की होता है, लोकेशन का हायरार्की होता है, वो कभी कभी चेंज होते हैं। मतलब अभी जो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जो मैनेजर लेवल पे है, कल वो वीपी लेवल पे जा रहा है, तो उसका हायरार्की चेंज हो रहा है। जब उसका हायरार्की चेंज हो रहा है, डेटा में भी उसका हायरार्की चेंज करना पड़ता है, राइट? तो वैसे ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मतलब डेटा एनालिस्ट को डेटा, हाँ मतलब और भी बहुत चीजें होते हैं यहाँ पे। डेटा को मतलब छोटे छोटे टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे होम लोन का डेटा पूरा एक जगह पे रखते हैं। हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, सब डेटा एक ही जगह, एक ही लोकेशन में, होम लोन, ऑटो लोन, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, सब यहाँ पे स्टोर हो रहा है। बट जब यहाँ तक पहुंचेगा देर विल बी स्मॉल स्मॉल फैक्ट टेबल्स। ओके, हाँ, डेटा मार्ट्स बोलते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ होम लोन का डेटा रहेगा, यहाँ पे क्लीन सिर्फ डाटा म्यूचुअल फंड्स का डेटा रहेगा, यहाँ पे सिर्फ व्हीकल लोन का डेटा रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एफडी का डेटा रहेगा, यहाँ पे सिर्फ सेविंग्स अकाउंट का डेटा रहेगा। हाँ, दे विल कैटेगराइज इनटू डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट टेबल्स। और हमें ये भी एनालाइज, ये फॉर एग्जांपल ये सेविंग्स अकाउंट का डेटा है, इसको मुझे एनालाइज करना है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से। तो देयर विल बी ए टेबल फॉर लोकेशन। इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेटा मॉडलिंग बोलते हैं। वी विल लर्न दिस वन लेटर। अभी बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, सबको लिंकअप करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि हम एनालाइज कर सके। ओके, अगर आप डेटा एनालिस्ट ये जो है, इसको क्या करना है, इसको एनालाइज करना है एफडी का डेटा, तो इसको सारे इंफॉर्मेशन देके कोई फायदा नहीं है ना। इसको वी विल ओनली गिव द डेटा विच इज रिलेटेड टू एफडीज। ये छोटा टेबल देने से हो जाएगा इसका काम। if he wants to analyze the home loan data, we will give only this one to him. इतना सारा डेटा देने की जरूरत ही नहीं है। सो टू मेक इट इजियर, डेटा एनालिस्ट का लाइफ इजियर करने के लिए डेटा इंजीनियर क्या करता है, ये सब काम करके देता है। ओके, ही डजंट नीड ऑल, मतलब पूरा वर्ल्ड का डेटा लेके ये क्या करेगा? ही डजंट नीड, ही नीड्स आप वो डेटा, वो जो रिपोर्ट बना रहे डेटा किसके लिए कर रहा है? इफ ही इज मेकिंग ओनली टू द कंट्री हेड, सिर्फ कंट्री का डेटा लेके करेगा। इफ ही इज मेकिंग फॉर द ग्लोबल हेड, उसको पूरा चाहिए। इफ इज मेकिंग फॉर द स्टेट लेवल वन, उतना ही डेटा चाहिए उसको, राइट? सो ऑडियंस कौन है, इसका मतलब फाइनल किसको दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से
he will get the data from here. Okay, so these are the different roles in data. Out of these roles, for data analyst, as I said, we will be focused on data analyst. ये जो high level information आपको दे रहा हूँ कि कौन से departments होते हैं, किसका काम क्या है. Our focus will be data scientist collect all data. Sorry? सर डाटा साइंटिस्ट सब डाटा कलेक्ट करते हैं, एफडी डाटा और डेटा जितना भी साइंटिस्ट डाटा आपने वो नहीं डेटा एनालिस्ट जो डेटा यूज करेगा, डेटा साइंटिस्ट भी वही डेटा यूज करेगा. डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, जो डेटा है उसी को एनालाइज करके मतलब ही विल शो इट टू द एंड यूजर्स. डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, वही डेटा को यूज करके फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रिडिक्शन, फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है. हाँ, डेटा साइंटिस्ट प्रिडिक्शन करता है, डेटा एनालिस्ट जो पास्ट में हुआ है उसी को दिखाता है. ठीक है, राइट. नाउ आवर फोकस विल बी हियर, data analyst. ठीक है, so when you, as I said, for data analyst we need these tools. Okay, out of these tools, when I wanted to change Excel, I had some knowledge. Power BI or Tableau, these were the top tools at the time also, now also. 10 साल पहले भी, अभी भी. उस टाइम में Tableau और ज्यादा था. ठीक है, if I show you something, for example, okay, there is a company called Gartner. ठीक है, ये गार्टनर क्या करता है, हर साल ही विल डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन डिफरेंट टूल्स अवेलेबल. ठीक है, सो ये वाला जो ये 2021 का है, बट इफ यू मतलब गूगल करोगे तो हर साल आपको मिलेगा. 25 का भी आ गया होगा. ओके, सो ऑलवेज इन द लीडर्स क्वाड्रेंट, ये सारे बीआई टूल्स है. यहाँ पे जितने सारे आप देख रहे हो ना, सब कुछ डेटा एनालिसिस रिलेटेड टूल्स है. ठीक है, so out of all these tools you see Microsoft मतलब Microsoft Power BI. okay, Tableau is Salesforce Tableau. okay, Salesforce कंपनी का टूल है Tableau, Microsoft कंपनी का टूल है Power BI. ठीक है, ये दोनों हमेशा लीडर्स में है from the last 6-7 years. if you see, आप गूगल कर सकते हो. नहीं, टूल्स जो है उसको एनालाइज करके कौन सा ज्यादा यूज हो रहा है, कौन सा लीडिंग में है. ओके, वो बना के दिखाता है. हाँ, वो भी एनालाइज करके दिखाता है कौन सा टूल अभी ट्रेंडिंग में है. हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर BI एंड टैब्लो, दीज टूल्स आर ऑलवेज इन द लीडर्स क्वाड्रेंट. इससे हमारा बेनिफिट क्या है, अगर वो लीडर में हो या ना हो, हमारा बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, अगर दीज आर ऑन द लीडर्स क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज आर यूजिंग इट. Okay, globally maximum number of companies are using these two tools. अगर यूज कर रहे तो हमें फायदा क्या है? अगर बहुत सारे कंपनीज यही टूल यूज कर रहे हैं तो हमारा फायदा क्या है? अपॉर्चुनिटी, राइट. अगर बहुत सारे कंपनी वो यूज कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉय भी चाहिए जिसको ये आता है ना. अगर इफ आई नो समथिंग कॉल्ड बोर्ड, दिस इज ऑल्सो ए बीआई टूल, मुझे जॉब कौन देगा? हाँ, जितने सारे हैं सब एक बीआई टूल है. ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये टैब्लू जो है सेल्सफोर्स का है, क्लिक जो है, क्लिक अलग कंपनी है, टिपको सॉफ्टवेयर एक अलग कंपनी है, आईबीएम का भी होना चाहिए, ये आईबीएम का. दिस इज कॉग्नस बीआई. ओके, दिस आईबीएम वाज वेरी ट्रेंडिंग 20 years बैक. कॉग्नस बीआई करके सेम टूल था जो कि लास्ट 20-25 years से बहुत अच्छा था. बट आफ्टर पावर बीआई टैब्लू केम इनटू पिक्चर, दिस ऑल केम डाउन. ठीक है, ट्रेंडिंग पावर BI एंड टैब्लू, ये दोनों जो दिख रहे हैं ना, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे विल यूज दिस वन. आउट ऑफ दीज टू, इफ आई से पावर BI इज मोर. व्हाई? बिकॉज आई हैव डन रिसेंटली 2-3 प्रोजेक्ट्स वेयर आई हैव माइग्रेटेड. जो लोग टैब्लू यूज कर रहे थे वो लोग माइग्रेटिंग फ्रॉम टैब्लू टू पावर BI. तो जो रिपोर्ट्स टैब्लू में थे उसी को मैंने फिर से पावर BI में बनाया. क्यों? क्योंकि दे आर माइग्रेटिंग. वो कंपनी लोग मतलब डिसाइड किए हैं कि नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल यूज पावर BI नॉट टैब्लू. मतलब उनका जो भी है, व्हाई जनरली दे चेंज. उनका टैब्लू चल रहा था, सब कुछ अच्छा खासा था, व्हाई दे आर मूविंग? फाइनली सबका मोटिव एक ही होता है, कॉस्ट कटिंग. सारे कंपनी का फाइनली मतलब उनका एनी कंपनी, इट इज अ बिजनेस.
फाइनली दे वांट टू मेक मनी। जो पैसे खर्च करे उसको कम करके कमाओ या नया करो, जो भी करो, दे वांट फाइनली दे वांट टू इम्प्रूव इट बेस्ड ऑन लास्ट ईयर अगर 10 crores किए हैं, the next year they want to make it 12 or 13 or 15, some percentage improvement should be there. So in that process they understood that Tableau licenses are costly, Power BI licenses are very cheap, Power BI के resources बहुत आसानी से मिल जाता है। हाँ, क्योंकि अगर मतलब रिसोर्सेज ज्यादा है, मतलब मार्केट में अगर इफ पीपल आर देयर हु नोस मोर Power BI than Tableau, that means easily you will get Power BI employees, राइट। इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर इनको ढूंढना थोड़ा इजी हो जाएगा। So like this, lot of factors are there which are making Power BI better than Tableau. बट मैंने जब सेलेक्ट किया था उस टाइम में भी ये दो थे, दोनों अच्छे थे, और Tableau और भी अच्छा था। Why I choose Power BI, I will tell you. First thing, मुझे एक्सेल थोड़ा बहुत आता है, एक्सेल से ही Power BI बना है। ओके, एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का है, Power BI भी माइक्रोसॉफ्ट का है। एक्सेल में एक एड इन है पावर पिवोट करके, यहाँ पे जो है, इफ यू सी दिस वन, ओके, पावर पिवोट, ये जो एड इन है इसी को बाहर लाके पावर बीआई बनाया गया है। एग्जैक्टली इट इज द सेम, पावर बीआई कुछ भी नया नहीं है। ये जो एड इन है 2008-2009 ऑनवर्ड से एक्सेल में है, स्टिल पीपल आर नॉट यूजिंग। Okay, they don't know how powerful this is. We will talk when we talk about Excel. Now I will tell you about Power Pivot, how it works. हाँ, क्या हुआ? कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है ना, ये सेलेक्ट किया है करके यहाँ पे दिखाया जाएगा। ओके, राइट। तो ये जो है पावर पिवोट जो है, दिस इज एक्चुअली पावर बीआई 2008 ऑनवर्ड से ये यहाँ पे है, बट वी आर नॉट यूजिंग मच इन एक्सेल। तो इसी को बाहर लाके और अपग्रेड करके दे मेड ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड पावर बीआई। That is one factor, because I know Excel, so I felt like learning Power BI will be much more easier. Tableau का इंटरफेस पूरा अलग होता है, Power BI का इंटरफेस it will be somewhat related to Excel. That is one thing. Second thing, आप जो सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, Power BI जो सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, that is free for everybody. That is free for everybody. अभी right now you can download the software and you can start working on the development of the report. Credit card नहीं चाहिए, any payment is not required, email ID is not required, nothing is required. Okay. Then Power how? BI. हाँ, पावर बीआई के लिए, पावर बीआई डेवलपमेंट के लिए कुछ चाहिए नहीं, फ्रीली एवरीथिंग इज अवेलेबल। देन वो पावर बीआई मनी कैसे जनरेट करता है? अगर सब कुछ फ्री दे रहा है, पावर बीआई भी तो इट इज ए बिजनेस, राइट? दे नीड टू गेट सम मनी आउट ऑफ इट, हाउ दे आर मेकिंग। तो डेवलप करने के बाद व्हेन यू वांट टू शेयर इट विद द ग्लोबल ऑडियंस, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। रिपोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। जब आप उसको क्लाउड में डाल के दूसरों के साथ शेयर करना चाहोगे, या फिर सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहोगे, या फिर रिपोर्ट को ऑटोमेट करना चाहोगे, ऑटोमेटिकली इट शुड रिफ्रेश एवरी डे, वो सब करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। रिपोर्ट डेवलप करने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एंड इट इज फ्री। एंड एग्जैक्टली अभी हम लोग जो यूज करेंगे, जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, रियल टाइम में जो आप यूज करोगे, इट विल बी एग्जैक्टली द सेम, 0.001% का भी डिफरेंस नहीं होगा। मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे सीख रहे हो एंड व्हेन यू गो टू ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी यूजिंग, यू विल नॉट फील न्यू कि हम लोग उसी पे काम किए हैं, अभी ऑर्गेनाइजेशन में उसी पे काम करें, यू विल नॉट फील न्यू। बट टैब्लो का प्रॉब्लम मुझे क्या दिखाई दिया, टैब्लो फ्री वर्जन देता है ओनली फॉर 14 डेज। ओके, फ्री वर्जन 14 डेज के लिए देता है, उसके बाद वी नीड टू बाय द सब्सक्रिप्शन। 14 डेज में हम कितना ही सीख पाएंगे, difficult. And in free version also there will be certain features which is in the subscription version कुछ features होते हैं जो free version में वो नहीं देते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मैं ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करूंगा और जब सीखूंगा, there will be some gap, कुछ डिफरेंस होगा, थोड़ा भी हो, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट? सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आई फेल्ट दैट आई नीड टू गो टुवर्ड्स पावर बीआई, क्योंकि मैं पावर बीआई जब सीखूंगा, इस टूल पे जब सीखूंगा, सेम एग्जैक्टली सेम टूल आई एम गोइंग टू यूज इन माय ऑर्गेनाइजेशन लेवल आल्सो।
So I will not feel any discomfort. Right. So these are the certain factors which I took for choosing the tool. Power BI करना है या फिर Tableau करना है. ठीक है. Any questions till now? सर एक गूगल स्टूडियो करके भी होता है, मतलब लुकर टूल ऐसे कुछ बहुत होता है। सारे टूल्स है. As I जी। told you, Yes. BI के बहुत सारे टूल्स है. सभी कंपनी के एक एक टूल है. Okay, these are all this is टिपको सॉफ्टवेयर, थॉटसॉट, ऑरेकल का है, SAS का है, लुकर, ये जो गूगल आप बोल रहे हो ना, गूगल यस सर। लुकर, दिस इज द सर वन. एक्चुअली मतलब मैंने इसलिए मतलब जाना हूँ क्योंकि मैंने जैसे naukri.com पे या फिर लिंक्डइन में देखा है कि वहां पर लिखे होते हैं पावर BI / गूगल लुकर एनी टूल, मतलब कोई भी टूल एक आता हो ऐसा, हाँ, मतलब हाँ, कई जगह हाँ. लिखे होते हैं, कोई छोटी Right. स्टार्टअप कंपनियां वगैरह लिखी होती हैं। करेक्ट, करेक्ट. मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब वो मेंशन करते हैं जेडी में, दे विल मेंशन सो मेनी टूल्स. मतलब कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल जैसे पावर बीआई हो गया, टैबलो, पावर बीआई / टैबलो / लुकर ऐसे करके लिखते हैं. दैट डजंट मीन कि सबको सब कुछ आना चाहिए. दैट इज इम्पॉसिबल. उसका मतलब ये है कि आपको एक बीआई टूल आज मतलब अच्छे से आता है, दूसरा सीखना इजी है. ओके, अगर इफ यू नो वन टूल इन a प्रॉपर वे, दूसरा BI tool it will remain the same, only the interface will change. काम सेम ही रहेगा. आप एक कार में कार चलाना सीखे हो तो दूसरा कार चलाना इजी होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. स्टार्टिंग थोड़ा बहुत लगेगा कि मे बी, हाँ, कहाँ पे क्या है जानने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल बी द सेम ओनली, राइट. सेम वे BI टूल्स ऑल्सो, अगर आपने एक सीख लिया अच्छे से, दूसरा सीखना इतना टाइम नहीं लगेगा. So that is why they mention Looker और Power BI, और या मतलब उसका मतलब यह है कि आपको कुछ भी अच्छे से आता है, maybe another 15 days they will give you time to learn the tool which they are using. Okay, right. Now I will take another 10 minutes just to show you how easily we can create a report. Okay, अभी तक जो बोला था just a kind of overview. For example, we have some data like this. ओके, एक सैंपल सुपर स्टोर का डेटा है मेरे पास. ऑर्डर्स, जहाँ पे सारे ऑर्डर्स यहाँ पे स्टोर हुए हैं. ठीक है. ओके, एक सुपर मार्केट काइंड ऑफ डेटा. ठीक है, पहले डेटा को समझते हैं. यहाँ पे सिर्फ एक काइंड ऑफ सीरियल नंबर है, ऑर्डर आईडी है. जब भी हम एक ऑर्डर मतलब प्लेस करते हैं, उसका एक आईडी जनरेट होता है. हर एक ऑर्डर का एक आईडी जनरेट होता है. तो वो आईडी यहाँ पे स्टोर हो रहा है. कौन से दिन में हमने ऑर्डर को प्लेस किया है, कौन से दिन वो शिपिंग हुआ है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर डेट एंड शिपिंग डेट. व्हाट इज द डिफरेंस? Like when we place the order, that is the order date, and when it got shipped nearby, मतलब हमारे एड्रेस के नियरबाई शिप हुआ है. शिपिंग डेट मतलब जहां से वो ऑर्डर को स्टार्ट होता है, मूव होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड शिपिंग डेट. सो ऑब्वियसली ऑर्डर डेट के बाद ही होगा शिपिंग डेट. ठीक है, राइट. उसके बाद शिपिंग मोड. शिपिंग मोड मतलब क्या है? जैसे कि सेम डे डिलीवरी होता है, फर्स्ट 1 day 2 day डिलीवरी, या स्टैंडर्ड डिलीवरी बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन वी हैव, जैसे अमेजोन में भी होता है, राइट. तो मोड ऑफ शिपिंग. कस्टमर आईडी, हर एक कस्टमर का एक कस्टमर आईडी होता है, राइट. तो वो कस्टमर आईडी यहाँ पे स्टोर हो रहा है. कस्टमर नेम, कौन सा कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, वो कस्टमर कौन से सेगमेंट को बिलोंग करता है, वो कंज्यूमर है या कॉर्पोरेट का है या फिर होम ऑफिस का है. वैसे ही हाँ, वो कौन सा कंट्री को बिलोंग करता है. यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री का डेटा है, यूएस का. ठीक है, वो यूएस में कौन सा सिटी से बिलोंग करता है, कौन सा स्टेट बिलोंग करता है, उसका पोस्टल कोड क्या है, वो कौन सा रीजन को बिलोंग करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या सेंट्रल, और उसने कौन सा प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है. हर एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट आईडी होता है, राइट. वो जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो कौन सा कैटेगरी को बिलोंग करता है, फर्नीचर से है या ऑफिस सप्लाई से है या टेक्नोलॉजी से है. सिमिलरली कौन सा सब कैटेगरी से है, अगर फर्नीचर है वो चेयर है या टेबल है या क्या है. ओके, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ऑल द डिटेल्स. ओके, और कितना सेल जनरेट हुआ है, कितना क्वांटिटी का सेल जनरेट हुआ है उस पर्टिकुलर ऑर्डर से, कितना डिस्काउंट मिला, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. अगर मैं इसको देके आपको बोलूंगा कैन यू प्लीज टेल मी कि ओवरऑल सेल क्या है, तो बाय सीइंग इन दिस वन इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, राइट. ईच कैटेगरी का सेल क्या हो रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है,
टॉप 5 प्रोडक्ट्स मेरा सेल क्या हो रहा है, जो ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ये सब बोलना लिटिल डिफिकल्ट बाय लुकिंग इनटू दिस वन. सो एट द टाइम डेटा एनालिस्ट विल कम इनटू पिक्चर. डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, फॉर एग्जांपल पावर बीआई जो भी टूल वो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम पावर बीआई दिखाएंगे, ठीक है. तो पहले वो क्या करेगा, डेटा को लाएगा. मैं पावर बीआई सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ डेटा एनालिस्ट करेगा क्या, ठीक है. वी विल गो स्टेप बाय स्टेप एंड वी लर्न इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, वो सब आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके, नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू एन ओवरव्यू. तो मुझे वो डेटा लाना है, तो एक्सेल में है, सो आई विल टेक द एक्सेल वर्कबुक. वो लोकेशन पे जाऊंगा, उस डेटा को पहले मैं पावर बीआई के अंदर लेके आऊंगा, ठीक है. सो आई हैव 3 टेबल्स, आई नीड ओनली 1 टेबल ऑर्डर्स, जहाँ पे अभी जो डेटा हमने देखा था सब कुछ यहाँ पे है. एंड देन आई विल लोड द डेटा. सो मेरा डेटा जो जहाँ पे भी है, जो भी डेटा सोर्स है, वो एक्सेल हो सकता है, वो जेसॉन हो सकता है, वो SQL सर्वर हो सकता है, ऑरेकल हो सकता है, कोई भी क्लाउड हो सकता है, कहीं पे भी डेटा हो, पावर बीआई हैज द एबिलिटी टू कनेक्ट टू द डेटाबेस एंड ब्रिंग इट टू द पावर बीआई लोकेशन. कहाँ से भी आ सकता है, बट यू नीड टू मेक मे बी CSV फॉर्मेट में यू मे हैव टू कन्वर्ट. एनीवेयर डेटा इज देयर, यू कैन ब्रिंग इट टू दिस वन. बट इन जनरल रियल टाइम में डेटा हमेशा डेटाबेस में ही होता है, ठीक है, क्योंकि मिलियंस ऑफ डेटा जब होता है, यू कैन नॉट पुट इट इन एक्सेल और वर्ड और यहाँ वहाँ रख नहीं सकते, ठीक है. इसीलिए डेटा इंजीनियर चाहिए वहां पे. तो डेटा आ गया यहाँ पे. ओके, मुझे क्या दिखाना है, हर एक कैटेगरी में सेल क्या है. यहाँ पे बहुत 3 कैटेगरी है, राइट. 3 कैटेगरी थे, कहाँ है, we have 3 different categories here, right. So each category में sales क्या हुआ, क्या हो रहा है. I will just take a visual, any visual. For example, I will take a column chart. मुझे क्या दिखाना है, कैटेगरी, इसको x एक्सिस में डालूंगा, सेल्स को y एक्सिस में डालूंगा, बस उतना ही. मुझे ईच कैटेगरी में सेल्स क्या हो रहा है, आई विल बी इजीली एबल टू फाइंड आउट. इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि जब व्हेन वी आर गिविंग इट टू एंड यूजर, इट शुड लुक गुड, राइट. It should look good. So a lot of formatting changes we can do it from here. No. Okay, जैसे नाम अच्छे से दिख नहीं रहा था, राइट. Like this. Similarly, y-axis also I can do the changes. मतलब फाइनली जब हम एंड यूजर को रिपोर्ट देंगे, इट शुड लुक इन ए प्रेजेंटेबल फॉर्मेट, राइट. बॉर्डर देंगे, सम ऑफ सेल्स नहीं चाहिए मुझे, सेल्स बाय कैटेगरी चाहिए. Okay, now it looks better, right? Yes, sir. So we can very quickly we can create any kind of visuals. Okay, यहाँ से मैंने क्या दिखाया, अभी कैटेगरी बाय सेल्स दिखाया. फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है यहाँ पे. मुझे सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं उसको डालूंगा, एक कॉलम चार्ट लूंगा, एक कॉलम चार्ट में आई वांट टू शो ईच प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट नाम कहाँ पे, दिस इज द प्रोडक्ट नेम. आई विल पुट इट इन y एक्सिस एंड सेल्स इन x एक्सिस. y x एक्सिस दैट वी विल लर्न लेटर, ठीक है. यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग मैंने किया वो सारे यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है. अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए. ओके, मुझे क्या चाहिए, मे बी मुझे कुछ प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने हैं जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे. ओके, मे बी लास्ट 5 प्रोडक्ट्स मुझे डिसकंटिन्यू करने हैं. वो कौन से प्रोडक्ट है. So what I will do, maybe I will come here and I will apply a filter saying that I want to see कि bottom 5 products क्या है based on sales. So these are the bottom 5 products which are giving me least sales. तो इसको continue करके मुझे कुछ फायदा नहीं है. So maybe I will remove this one. I will stop producing this one. Okay. So ये सब analyze करना, it is going to be very difficult अगर if you are not using any kind of data analysis. राइट. फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या जानना है,
आई नीड टू क्रिएट एक क्विकली और एक टेबल बनाता हूं क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड। मुझे क्या जानना है, और एल्स लेट्स सी, हर एक सेगमेंट का, ओके, ईच सेगमेंट का सेल्स क्या हो रहा है। सो आई विल टेक सेगमेंट एंड सेल्स। सो मुझे क्या पता चलेगा यहाँ पे, ईच सेगमेंट से कितना सेल आ रहा है। सिमिलरली आई वांट टू नो ईच रीजन से क्या सेल आ रहा है। सो आई विल टेक द रीजन एंड आई विल शो, आई विल चेंज द विजुअल ऑल्सो। सो मुझे यहाँ पे पता चलेगा ये हर एक रीजन से कितना कितना सेल आ रहा है। ओके, ईच रीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब वेस्ट रीजन अगर मैं 100 सेल हो रहा है, वेस्ट रीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ईस्ट रीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो मुझे पता करना है। मे बी आई नीड टू राइट लिटिल कोड। सो इसीलिए पावर बीआई को क्या बोलते हैं, इट इज नॉट जीरो कोड, इट इज लो कोड। ओके, मे बी मुझे यहाँ पे एक मेजर बनाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, ओके, पहले एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा टोटल सेल्स विच इज नथिंग बट सम ऑफ सेल्स, और एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि ओवरऑल सेल्स equal to calculate. All these things I will tell you later. I'm just showing you what all things are required. Okay. So what, how quickly I was able to know कि each region से कितना contribution आ रहा है मुझे by percentage. ओके, नंबर से ज्यादा पता नहीं चलेगा ना, परसेंटेज से वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कौन सा रीजन मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, सो जो डेटा है उसी को दिखाने के साथ वी मे हैव टू डू सम न्यू थिंग्स आल्सो। मतलब यहाँ पे मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, बट by using some calculation, by using some analysis, I am showing in a better way, right? इसको मुझे सेल्स दिखाने की जरूरत भी नहीं है, I can directly show कि each region का contribution क्या हो रहा है। I can show it in a different chart also. कि कौन सा कितना परसेंटेज दिखा रहा है। Okay, so lot of analysis we can do it very quickly, very easily in Power BI. Okay, first you need to understand कि data analysis का importance क्या है। क्योंकि for example you own a company, आपने कुछ मतलब last year you made a profit of around 10 lakhs. नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, उतना ही चाहिए या जो होगा देखा जाएगा, और यू वांट टू ग्रो। डेफिनेटली वी वांट टू ग्रो, एनीबॉडी वांट्स टू ग्रो। अगर आपको ग्रो करना है, क्या करना है, चुपचाप बैठने से आप ग्रो नहीं करोगे। यू नीड टू मेक सम डिसीजन, आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या डिसीजन लोगे, प्रोडक्ट्स को बढ़ाऊंगा या प्रोडक्ट्स को घटाऊंगा, या फिर एम्प्लॉयज को बढ़ाऊंगा या फिर एम्प्लॉयज को घटाऊंगा, या क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ाना है, प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, क्या करना है। वी कैन नॉट टेक रैंडम डिसीजंस। जो भी मेरे पास लास्ट 2 साल से या 3 साल से हुआ है उसको लेके मुझे एनालाइज करके फिर मुझे डिसीजन करना है, तब आप 99% सक्सेस पाओगे। अगर आप रैंडमली डिसीजन मेकिंग करोगे 99% फेल्यूर पाओगे। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एवरीवेयर। छोटा मोटा जो भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी हो, विदाउट डेटा एनालिसिस दे कैन नॉट वर्क डे टू डे। Another example I will tell you, I was creating a report for a financial sector. Okay, वहां पे क्या होता है, मतलब जो सेल्समैन होते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा वो जो रिपोर्ट हम बनाते हैं पूरा सीईओ लेवल या फिर वीपी लेवल पे बनाते हैं। वी मेक द रिपोर्ट एट द लो लेवल ऑल्सो, जैसे सेल्समैन है उनके लिए भी मैं बनाता हूँ। तो उनके लिए मैं क्या बनाया था, बेसिकली दे हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स। ओके, 200-300 क्लाइंट्स है। जनरली B2B सेक्टर में क्या होता है, अगर आज आप एक प्रोडक्ट को सेल किए तुरंत वो पैसे नहीं देते हैं। they will have some credit terms कि 30 days के बाद देंगे या 60 days के बाद देंगे, like that they will be having credit terms, immediately they won't give। आज मेरा शॉप फ्लोर जो गेट एंट्री हुआ है, जो गेट एंट्री होता है
उसके बाद से 30 डेज के बाद वो लोग जनरली मनी दे विल गिव। तो मैंने सेल कर दिया है, अभी उसके बाद ट्रैक किसको करना है? मुझे ही ट्रैक करना है ना। आपको प्रोडक्ट मिल गया, यू आर नॉट वरीड अबाउट पेइंग द मनी। जब मैं पूछूंगा तभी आप दोगे, राइट? अभी मेरे पास 1000 कस्टमर्स है, मैं हर रोज किस किस को पूछूंगा? आई कैन नॉट कॉल 1000 मेंबर्स, आई कैन नॉट सी 1000 मेंबर्स डेटा। बट इफ आई आस्क ए डेटा एनालिस्ट, वो डेटा एनालिस्ट क्या करेगा? डायनेमिकली एक ऐसा रिपोर्ट बना के देगा कि हर रोज मैं जब रिपोर्ट को ओपन करूंगा मुझे 10 मेंबर्स या फिर एक लिस्ट ऐसा आ जाएगा जिसको मुझे आज टारगेट करना है, क्योंकि उनका पैसा मुझे एक हफ्ते के अंदर आना चाहिए। मतलब उनका ड्यू डेट पास आ रहा है, उनका लिस्ट ही दूंगा मैं उनको। सो ही कैन इजीली कॉन्टेक्ट ओनली दोज पीपल इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद 1000 मेंबर्स। ही विल कनेक्ट ओनली विद दोज 10 मेंबर्स, 5 मेंबर्स या 15 मेंबर्स जो भी है। वो एक चीज है। और एक चीज, अगर रैंडमली वो कॉल करता है, अगर आपने मुझे पैसे दे दिए है, स्टिल मैं एम कॉलिंग यू एंड आस्किंग, यू विल बी इरिटेटेड। मैंने तो आपको पेमेंट कर दिया है ना, बार बार क्यों फोन कर रहे हो? सो एक्यूरेसी ऑल्सो, नाउ आई नो एग्जैक्टली हु हैज नॉट पेड, आई कैन ओनली कॉल देम ओनली। सो इट विल बी इन द लोअर लेवल। देर आर सम प्रोजेक्ट्स वेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज करते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर में फॉर एग्जाम्पल 10-20 रिसोर्सेस है, वो ट्रैक नहीं कर पाएगा कौन कौन से काम में बिजी है। अगर मैं एक रिसोर्स एलोकेशन का एक रिपोर्ट बना के देता हूं जिसमें पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय 1 इज 100% ऑक्यूपाइड, उसके पास टाइम नहीं है, तो मैं उसके लिए और नया काम नहीं लूंगा। और एक एम्प्लॉय जो 50% ही ऑक्यूपाइड है और 50% खाली है, तो इसका मतलब क्या है? आई कैन ब्रिंग अनदर प्रोजेक्ट, राइट? तो इन दिस वे प्रोजेक्ट मैनेजर्स आल्सो यूज रिपोर्ट फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, वीकली एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट वीक ये पर्सन खाली है, सो आई कैन ब्रिंग अनदर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वीक दिस पर्सन इज ऑन लीव, सो आई नीड टू पुट समबडी एल्स इन हिज पोजीशन। ये सब प्लानिंग करना पड़ता है, इसके लिए 100% रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। विदाउट रिपोर्टिंग इन आईटी और एनी सेक्टर यू कैन नॉट डू। आईटी में क्या होता है, एक हाई लेवल पे होता है, बाकी जगह पे एक्सेल में होता है या फिर छोटे मोटे चीजें में होता है, बट डेटा एनालिसिस इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड। विदाउट दैट दे कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है? सो एनी क्वेश्चन गाइस? आई थिंक I know I am little fast today, but wanted to cover all these things. So any questions, guys? See, while I will show you some reports also quickly, so you can understand. Meanwhile, you can ask me some questions also. नहीं, अभी तो सर ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं मिला। No questions? Yes sir, no questions. नो क्वेश्चन मतलब दो चीजें हो सकता है, एक सब कुछ समझ में आ सकता है या फिर कुछ भी नहीं आया। तो क्या है वो? All clear sir, till now. Okay, good. आपका ऑफलाइन सेंटर भी है क्या? आई थिंक बिकॉज मतलब आई थिंक कुछ लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं। हाँ, offline also we have like around 10 members here. Okay. If you want to come offline, you can come. Okay. See, this is a simple dashboard I have created. जो 2020 में जो मेगा ऑक्शन हुआ था आईपीएल का, most of the people know about cricket and IPL, right? So I thought to make it. तो यहाँ पे if you see it, just how easily मैंने यहाँ पे क्या दिखाया पेज नंबर 2 में, जितने सारे टीम्स है, प्लेयर का नाम क्या है, वो कौन सा टाइप है, बैटर है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, विकेट कीपर है, जो भी है, उसका बेस प्राइस क्या था और कितने पैसे में ही गॉट सोल्ड। ओके, ऑल द थिंग्स हैं shown here. Here what I am showing, टोटल कितने टीम्स पार्टिसिपेट किए थे, कितने प्लेयर्स थे, कितने सोल्ड हुए, कितने अनसोल्ड हुए, टोटल बजट कितना था, उसमें से टॉप 10 बिडर्स कौन थे। ईशान किशन was the person who got the highest bid, 15.25 CR. Like that I have created easily, we can now understand. अगर मैं आपको डेटा ऐसा दिखाऊंगा, it will be very difficult for you to understand कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे if you see each team 20, for example, Sunrisers Hyderabad bought 20 players. Out of 20, ऑलराउंडर्स कितने थे, बैटर्स कितने थे, बॉलर्स कितने थे, विकेट कीपर्स कितने थे।
वो भी दिखा सकते हैं बेस्ड ऑन द मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो भी बना सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर इज लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुंबई इंडियंस दे हैव बॉट 3 बैटर्स। हु आर दे? वो कौन है मुझे पता करना है। यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन है बट वो 3 मेंबर्स कौन है मुझे नहीं पता। बट आई हैव कॉन्फ़िगर्ड इन सच ए वे, फॉर एग्जांपल ये 3 पे मैं क्लिक करके इफ आई गो टू दैट पेज आई विल इजीली गेट टू नो हु आर दोस 3 प्लेयर्स। Okay. Similarly, if I go to any number, for example, Royal Challengers Bangalore 8 ऑलराउंडर्स को परचेस किया, वो 8 कौन है, उनका नाम क्या है, it will get filtered automatically. So these things and all we need to configure. ये सब ही हम सीखेंगे यहाँ पे. For example, Gujarat Titans has bought 7 bowlers. कौन है वो लोग? So these are the 7 people who bought by Gujarat Titans. Okay. So like this we can configure so many things. Real time में कैसे काम होता है? I will show you one. I have done one real-time freelancing one. Let me show you that one. Not this one. License. बहुत सारे लाइसेंसेस हम लोग देते हैं, राइट, फॉर एम्प्लॉय सैंडल। कौन यूज कर रहा है, कितने लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, कितने लाइसेंस एक्सपायर होने वाले हैं, ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी नीड टू नो सो दैट वी कैन मतलब फिर से वी कैन बाय इट, सब्सक्राइब इट, राइट। लाइक दैट एक सिंपल रिपोर्ट था, मतलब डेटा था, कौन से टीम के पास कितने लाइसेंसेस है, एडमिन टीम के पास कितना लाइसेंस है, दूसरा डेवलपर के पास कितने लाइसेंस है, ऑल दोस थिंग्स दे वांटेड टू एनालाइज। ओके, सर्विस नो के लाइसेंसेस बेसिकली, ओके, लाइक दिस। सो डिफरेंट कंपनीज है, वेंडर कंपनीज है, उनके सर्विस नो एडमिन के कितने लाइसेंसेस है, ये सैंपल डेटा था, ठीक है, ये सैंपल डेटा से हमने बनाया। वंस वी गेट द फुल डेटा वी विल कनेक्ट टू दैट डेटाबेस, नंबर्स बढ़ेंगे तब, ठीक है, ये सैंपल था। तो एडमिन के कितने लाइसेंसेस है, जो यूजर अप्रूवल करते हैं उनके कितने, ITIL लाइसेंस एक लाइसेंस होता है, तो वो कितने हैं, टोटल कितने लाइसेंसेस है। उसके बाद इफ आई फिल्टर, मुझे सिर्फ क्लाउड दैट कंपनी का चाहिए, सो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट वन ओनली दैट कंपनी डेटा विल बी अपीयरिंग हियर। इफ आई वांट ईयरली वाइज डेटा आई कैन गेट फ्रॉम हियर, फॉर एग्जांपल यूजर डिटेल्स, ओके, ये सारे यूजर्स के कौन से रोल, कौन सा कंपनी, कौन सा कितने दिन से वो लॉगिन नहीं किया, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मुझे अभी पता करना है कि ये ITIL के 8 लाइसेंसेस किसके पास है। So I can easily find their details from here. These are the 8 people who are having ITIL licenses. Maybe I will contact them by using their email ID. या फिर उनका फोन नंबर अगर होगा मैं डायरेक्टली उसको कांटेक्ट करूंगा, why you need ITIL license? Maybe he doesn't need it. So to verify those things and all, if I create this thing, then only I can easily make any kind of decision. I want to know, for example, ये जो 31 है, who are those 2022 में मैंने किसको किसको लाइसेंसेस प्रोवाइड किया है। So these are the people who I have provided in 2022. So any kind of analysis we can do it here. Okay, you will be doing all these things. I have some assignments where you will be doing all these things. ठीक है, और भी बहुत ज्यादा है but I cannot cover it in 1 hour. So yeah, that's all. Sir, I have one question like जैसे हमने एक बार मान के चलो आपने सॉफ्टवेयर वाला बताया, कोई भी हो सकता है, या बैंक वाला हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो अब अपन ने एक बार डैशबोर्ड बना दिया, ठीक है, अभी उस पे डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम डेली एक ही डेटा लेके बैठ आएंगे, मतलब करेक्ट। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हाँ, वो आएगा जब हम रिपोर्ट बना के व्हेन वी पब्लिश इट इन पावर BI सर्विस। पावर BI डेस्कटॉप अलग है, पावर BI सर्विस अलग है, ठीक है। मैंने पहले बताया था आपको कि रिपोर्ट डेवलप करने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, बट अगर जब आप ऑटोमेट करना चाहोगे, हर रोज जब नया डेटा आता है डेटाबेस में, ओके, जैसे हर रोज नया डेटा ऑब्वियसली आएगा, राइट, एवरीडे डेटा विल कम हियर, कहाँ पे, यहाँ पे नया डेटा आएगा। जब यहाँ पे नया डेटा आएगा, इनको भी वो नया डेटा दिखना चाहिए, राइट। तो
पावर BI सर्विस में हम उसको ऑटोमेट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक शेड्यूल रिफ्रेश करेंगे कि हर रोज सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट रिफ्रेश होना चाहिए। मैनुअल इंटरवेंशन नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली इट शुड रिफ्रेश। अगर यहाँ पे नया डेटा आता है, रिपोर्ट में भी नया डेटा दिखना चाहिए। ओके, सो वी हैव प्रोसेसेस टू डू द ऑटोमेशन आल्सो। मैं हर रोज रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। मैं रिपोर्ट एक बार बना दिया मतलब वो 10 साल चलेगा या 5 साल चलेगा, जब तक नया रिक्वायरमेंट नहीं आता है। तो 5 साल अगर चलना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर रोज रिपोर्ट को ओपन करेंगे, मैनुअली रिफ्रेश करेंगे, फिर से शेयर करेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वी विल कॉन्फ़िगर इन सच ए वे कि हर रोज मॉर्निंग, मतलब बिफोर वो लॉग इन करते हैं, जो एम्प्लॉय जब लॉग इन करते हैं 9 o'clock या 10 o'clock को लॉग इन करते हैं, राइट, तो उससे पहले ही रिपोर्ट रिफ्रेश होकर नया डेटा दिखना चाहिए उनको। So we can do that configuration. We can even do configuration. कुछ users होते हैं, जैसे I was in one company where the user was the मतलब leadership team. Okay, वो क्या बोलता है कि मैं हर रोज आके रिपोर्ट ओपन करके I cannot look into that one. मुझे तुरंत प्रेजेंटेशन करना पड़ता है CEO को। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा था, मुझे एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में हर रोज चाहिए। मतलब नया डेटा अगर आ रहा है, वो नया डेटा से एक PPT बना के मुझे भेजना चाहिए। तो वी हैव एन ऑप्शन इन पावर BI जहाँ पे रिपोर्ट को हम PPT में कन्वर्ट करके हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम में डायरेक्टली उसको मेल ट्रिगर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मेल ट्रिगर होगा विथ एन अटैचमेंट विथ ए PPT टू हिज मेल ID। वो सुबह जब ओपन करेगा अपने मेल ID, उसको PPT रेडी होगा। He will just open it and he will start presenting it. डेली सर ऑटोमेटिक? Yes, 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 yes. तो सर ये चीज जो रहेगी, मतलब आपने बताया कि मतलब पेड वर्जन में रहेगा, वेब वाले नहीं, वर्जन पे रहेगा? हाँ, वेब वाले वर्जन में रहेगा। That requires license, but it is not like every time। मतलब सीखने के लिए we have an option where we can create 60 days free license. Okay, 60 days के लिए आप वो अकाउंट यूज करके all the features you can learn, but रियल टाइम में they will use the subscribed version, जो कि मतलब ईयरली सब्सक्रिप्शन रहता है। बट लर्निंग पर्पस या मतलब लगभग 2-2.5 हजार रुपए पर मंथ का रहता है शायद। नहीं, पावर BI का लाइसेंस कॉस्ट वेरी चीप। पर पर्सन पर मंथ इट इज अराउंड 1000 रुपीज और समथिंग। ओके ओके, जो रियल टाइम में होता है, इसीलिए चेंज होते हैं ना। अभी जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में टैबलू से पावर BI, कॉग्निस BI से पावर BI क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पावर BI का लाइसेंसिंग कॉस्ट इज वेरी 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 लेस। इट इज पर पर्सन पर मंथ अराउंड 1000 रुपीज ओनली, नॉट इवन 1000, लाइक 900 समथिंग। यस सर। ओके, बट फॉर अस, हम जब सीखते हैं ना, व्हेन वी आर लर्निंग नाउ, आई विल गिव यू अ फ्री अकाउंट। ओके, आई विल टेल यू आल्सो हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट, बट दैट विल वर्क फॉर 60 days। उसके बाद वो काम नहीं करेगा। इफ यू वांट टू डू इट अगेन, यू नीड टू क्रिएट वन मोर अकाउंट। मतलब सर आप मतलब सिखाने के पर्पस के, मतलब ये ऑटोमेशन कैसे होता है, ये चीजें आप हाँ, वो सिखाओगे, सब लोग उसके हम लिए आप? प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, एवरीथिंग व्हाट यू डू इट इन रियल टाइम, नो, एवरीथिंग वी विल डू इट हियर प्रैक्टिकली। ठीक है? ओके सर। या सो बाय नाउ यू शुड बी क्लियर कि डेटा इंजीनियरिंग एक्चुअली करते क्या है, डेटा एनालिस्ट एक्चुअली करते क्या है, डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं। ठीक है, ये चारों यू शुड बी क्लियर। और डेटा एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, ओके, दिस थिंग्स यू शुड नो। यस सर, ऑल क्लियर। यस सर, यस सर। एनी फीडबैक, मतलब कुछ चेंजेस यू वांट? सर मतलब जो पूरा 6 महीने रहेगा, 5-6 महीने जितना भी रहेगा, 6-7 महीना, तो उसमें सारा कुछ का प्रिपरेशन आप ही कराओगे, फिर अलग अलग मेंटोर में कैसा क्या चीजें हैं फॉर ये पूरा? श्योर पावर BI मैं ही करूंगा, सीक्वल का भी मैं ही करूंगा, एक्सेल का भी मोस्टली, एक्सेल का पता नहीं बेस्ड ऑन द टाइम, बट पावर पिवोट जो है एक्सेल में, जैसे पावर BI जैसे यूज होता है, वो सारे एडवांस फीचर है, सब कुछ मैं ही करूंगा। मे बी बेसिक्स जो होता है, सेल रेफरेंस क्या है, छोटे मोटे चीजें जो इनिशियल मे बी somebody else will cover, but when it comes to advanced things and all, I will cover. Okay, Python, that we will see. If I have time at that point of time, I will take Python, or else somebody else will take. But Power BI and SQL for sure I am going to take. ओके, मतलब अभी मैंने कहूँ कि जब मैम ने भेजा था 2-3 मेंटोर्स और थे, तो मुझे लगा कि सब कुछ मतलब हाँ, अलग you अलग can, पढ़ाएगा। अच्छा, नहीं डिपेंड्स करता है आपको, मतलब इट डिपेंड्स व्हेन यू आर, मतलब मेरे क्लासेस आप देखोगे इनिशियली, इफ यू फील दैट मे बी यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय थिंग,
you can tell them, then accordingly they will change. अच्छा Okay, you will get a chance to see all the mentors classes if you want to, and you can Okay. decide which one you want to take. ओके ठीक है Okay, सर right. Depends on the time कि morning या evening. अगर आपको evening ही है, maybe not possible for me because my office timings are from 1:30 to 1:30 to 10:30 evening, second shift होता है. So maybe I may not be available in the evening. So Yes, sir. similarly, some faculty is available in the evening, he may not be available in the morning. Okay, ओके सर right. So Friday is session. So we will have our next session Friday. Okay. Mostly we will have alternate days because I have seen in the past अगर मैं continuous कर रहा हूँ, students are coming back and saying that we need 1 day time to practice. Okay. And most important thing I will tell you, हमारे course में अगर आप लोग हर रोज 1.5 hour नहीं, कल नहीं है, परसों. Okay. So Initially it will be like 1 to 2 weeks, it could be 3 to 4 days, 3 days, but gradually we will increase based on your comfort. If you can. Depends all on you. अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पिकअप कर लूंगा या कर लूंगी, okay, every day if session is there I am okay, then we will go with everyday session. If you are feeling कि नहीं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बीच में एक दिन गैप चाहिए टू प्रैक्टिस, हाँ पूरा स्क्रैच से जाए. Excel from next week हाँ onwards. I completely understand. मैंने जो दिखाया अभी PowerPoint में किसी को कुछ समझ में नहीं आया, I know that because I didn't start, मतलब क्या है भी नहीं दिखाया. Session has to be interactive, right? And हाँ. the is sitting quietly, no one is interrupting. You should ask any questions and all. ठीक है, जब स्टार्ट करेंगे पूरा कैसे डाउनलोड करना है पावर बीआई, कौन सा पार्ट में क्या होता है, किसको क्या बुलाते हैं, वहां से स्टार्ट करूंगा. ठीक है, सो इट विल बी कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच. अगर मैं वो चीज अभी बोलता, मैं कवर नहीं कर पाता कि क्या है डेटा. Basic idea, how टाइमिंग लगेगा. हाँ, अगर मैं स्क्रैच से आज स्टार्ट करता, मैं डेटा इंजीनियरिंग का मतलब क्या है समझा नहीं पाता. अभी मैंने ओवरऑल आईटी में क्या हो, हाँ मिल जाएगा. हाँ, अच्छा रहेगा. तो आइडिया अभी डेटा इंजीनियरिंग भी 2 महीने पढ़ा सकते हैं. It's on a very high level. It's all about the functioning of your data science and this how it is functioning, how your data analytics is functioning, how your data science is functioning. This is all about the functions you just they have given you the basic idea about what you are going to do. हाँ, Next session. आपको मतलब फाइनली करना क्या है, क्या होता है, दैट इज व्हाट आई ओनली टोल्ड. कैसे करना है अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है. मतलब मेरा आइडिया है, अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग टू सम प्लेस, यू नीड टू नो आपको कहाँ जाना है. डायरेक्टली जाके बस में बैठने से इट इज नो पॉइंट. फर्स्ट यू शुड नो कि यू आर गोइंग टू हैदराबाद और चेन्नई और समवेयर एल्स, देन यू विल पिक द सेम बस. बस पकड़ना है और वहां पे जाके हाँ, वो दिखा है, बाकी बाद में आपको जाना हाँ, है. आपको डेस्टिनेशन क्या है, पहुंचने के बाद क्या होगा, दैट इज व्हाट आई शोड. कैसे जाना है. कैसे जाना है, वी हैव नॉट येट स्टार्टेड. अगर मैं स्टार्ट करता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम बस में तो बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जाने से मतलब क्या है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट टाइम गिविंग यू रिकॉर्डिंग सेशन मिली जो. हाँ, you will get the recording session, you will also get the running notes. Okay, I will every day जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, I will show you one sample. Okay, जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं ना, एवरीथिंग आई विल पुट इट डाउन लाइक दिस, एक रनिंग नोट्स में हर रोज डे वाइज क्या क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ओके, एवरीथिंग वी विल पुट इट हियर. इस डॉक्यूमेंट को एवरी डे यू नीड टू रीड. Okay, from this only I will be asking questions in the next class. And if you are good with this one, no, by the end of the course you are almost ready for the interview. Interview में 70% of the questions इसी डॉक्यूमेंट से आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, that is for sure. Remaining 30% सिनेरियो बेस्ड पूछेंगे कि ऐसा सिचुएशन में आप क्या करोगे, वैसा क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आंसर करना चाहिए, दैट आई विल टेल यू. बट दिस डॉक्यूमेंट इज, ये मैं बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ, इससे मेरा कुछ भी फायदा नहीं है. I am creating this only for you because you cannot look into the recording every day. 5 सेशन हो गए हैं,
उसके बाद आप 5 घंटे का रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते एक दिन में, दैट इज इम्पॉसिबल। बट इफ यू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि क्या क्या हमने कवर किया। Step by step approach or हाँ, only, no, it will be like कौन से टॉपिक, like for example there is something called data edit interaction, ठीक है, क्या करता है एडिट इंटरैक्शन और उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, सेलेक्ट द विजुअल, गो टू फॉर्मेट, yeah, गो टू, that I just want to know that हाँ whether it is step by step approach हाँ, or- स्टेप बाय स्टेप विल बी देयर बट नॉट टू एवरीथिंग। अगर एक विजुअल बनाना है, आई विल नॉट बी राइटिंग क्लिक ऑन विजुअल, क्लिक ऑन हियर, क्लिक ऑन हियर, दैट इफ आई राइट इट विल बिकम ए 1000-page डॉक्यूमेंट, okay, जो कि समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है। फॉर दैट आई विल पुट द थिंग्स विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, आई मे नॉट राइट ऑल द थिंग्स, okay, and you will be having assignments like this. Let me show you one assignment. हर एक मॉड्यूल खत्म करने के बाद फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मॉड्यूल खत्म करने के बाद आई विल गिव यू ए डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करके मैं एक डॉक्यूमेंट दूंगा, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि आपको करना क्या है, ओके, जैसे जनरली रियल टाइम में मिलता है। रियल टाइम में इमेजेस नहीं मिलेंगे, पहला असाइनमेंट है इसलिए आई एम गिविंग यू इमेजेस, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट फॉर यू फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड असाइनमेंट में इमेजेस नहीं दूंगा, सिर्फ ये वर्डिंग ही दूंगा। इस वर्डिंग को समझ के यू नीड टू क्रिएट दिस रिपोर्ट। बटन्स कैसे यूज करते हैं, मतलब कंप्लीट जैसे मोबाइल ऐप होता है ना, लाइक दिस वी कैन क्रिएट ए रिपोर्ट कि यहाँ पे क्लिक करने से वहां पे जाएंगे, वहां पे क्लिक करने से यहाँ पे जाएंगे, Yes. एवरीथिंग वी कैन क्रिएट इट इन पावर BI इन ए इजी वे। We will go very slow, we will go very मतलब from scratch, you will be able to understand. Just wait for another 2-3 sessions, you will get a clarity. Okay, right. आर यू करंटली ऑल्सो वर्किंग, बिकॉज आपने बताया ना मतलब आपका 1:30 बजे, मतलब 1:30 बजे से 10 बजे तक ऐसा कुछ टाइमिंग रहता है Right. शायद। Yeah, let me stop recording and I will tell you. ओके।